हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। इंट्रोडक्शन, एक्सपोनेंट्स, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, साइंटिफिक नोशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स। नाउ इंट्रोडक्शन। Look at the following facts. Mass of the sun is equals to 20000000000 up to kg. Mass of the earth is equals to 597600000000 up to kg. Are you able to read these numbers comfortably? Of course not. These are very large numbers and difficult to read, write and understand. So, to make these large numbers easy to read, write and understand, we use exponents. Now, exponents. When a number is multiplied by itself several times, it can be written in short form as under 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4 is equals to 4 raised to the 5. क्योंकि 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसका क्या लिखेंगे? 4 raised to the power 5. This short form 4 raised to the power 5 is called an exponential expression. The factor which is multiplied by itself again and again is the base, and the number of times the factor appears is the exponent. In 4 raised to the power 5, 4 is the base and 5 is the exponent. We read 4 raised to the power 5 as 4 to the power 5 or 4 raised to the power 5. In general, if a is any rational number and n is a positive integer, then a multiplied by a multiplied by a multiplied by a multiplied by a up to n times, that is equals to a raised to the power n. Here a is the base and n is the exponent or power or index. It is read as a raised to the power n or a to the power n. Let us have a look on some more examples. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 2 raised to the power 4 to the power 2 to the power 4. Minus 3 multiplied by minus 3 multiplied by minus 3 multiplied by minus 3 multiplied by minus 3 is equals to minus 3 raised to the power 5 or minus 3 to the power 5. 1 upon 4 multiplied by 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 1 upon 4 is equals to 1 upon 4 raised to the power 6. That is 1 by 4 to the power 6. Now, maths fact. A negative rational number raised to an even power is positive. A negative rational number raised to an odd power is negative. If p upon q is any rational number and n is any integer, then p upon q raised to the power n is equals to p raised to the power n and q raised to the power n. Example से करते हैं इसको. Calculate the value of a part 5 raised to the power 3, b part minus 7 raised to the power 4, C part 1 upon 2 raised to the power 6 and D part minus 3 upon 8 raised to the power 5. Solution करते हैं. A part 5 raised to the power 3, that means 5 multiplied by 5 multiplied by 5 is equals to 125. B part का solution minus 7 raised to the power 4 is equals to minus 7 multiplied by minus 7 multiplied by minus 7 multiplied by minus 7 is equals to 2401. पॉजिटिव आएगा. क्यों? बेस नेगेटिव है बट पावर इवन नंबर है. सी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं. 1 upon 2 raised to the power 6 is equals to 1 upon 2 multiplied by 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 1 upon 2, that is equals to न्यूमरेटर सारे एक साथ, डिनोमिनेटर सारे एक साथ, is equals to 1 upon 64. Now D part का solution. Minus 3 by 8 raised to the power 5 is equals to minus 3 by 8 multiplied by 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 minus 3 by 8. सारे न्यूमरेटर एक साथ और डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज -243 अपॉन
32,768। माइनस किस लिए आया? क्योंकि बेस हमारा नेगेटिव है और पावर हमारी क्या है? ओड नंबर है, राइट? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यूजिंग एक्सपोनेंट्स राइट ए पार्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, बी पार्ट -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6, सी पार्ट 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, डी पार्ट -1/3 मल्टीप्लाई बाय 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 -1/3। सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट 7 को 3 टाइम्स किया है तो 7 रेज टू द पावर 3। बी पार्ट -6 को कितने टाइम्स किया है? 5 टाइम्स, तो -6 रेज टू द पावर 5। सी पार्ट 1/5 को कितने टाइम्स किया है? 4 टाइम्स, तो 1/5 रेज टू द पावर 4। डी पार्ट -1/3 को 6 टाइम्स किया है तो -1/3 रेज टू द पावर 6। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 4, बी पार्ट 5 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2, सी पार्ट 3 रेज टू द पावर 2 सुपर पावर 3, डी पार्ट 2 रेज टू द पावर 3 सुपर पावर 3। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए पार्ट 2 रेज टू द पावर 6, दैट मीन्स 2 को 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 4, दैट मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा 64 मल्टीप्लाई बाय 16 और उसको मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 1024। बी पार्ट का सॉल्यूशन, 5 रेज टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2, 5 को कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 5 को 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स है यहाँ पे 1 1 1 1 मल्टीप्लाई किया, बाकी बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 125। सी पार्ट का सॉल्यूशन, 3 रेज टू द पावर 2 होल पावर 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 की पावर 3, तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 729, राइट? आंसर क्या है? 729। नाउ डी पार्ट का सॉल्यूशन, 2 रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 8 आया, 8 को की पावर कितनी है? 3, 8 को फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? 512, राइट? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस इन पावर नोशन। ए पार्ट इज -512, बी पार्ट इज 16/81, सी पार्ट इज -27/343, डी पार्ट इज -1/243। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए पार्ट -512, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस नंबर को कितने टाइम्स किया? तो हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कैसे? ऐसे वाले 512 के किए, जैसे 2 2 जा 4 5 1 2 5 जा 10 12 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। तो -2 को 9 टाइम्स क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आ गया? -2 रेज टू द पावर 9। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे बी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, 16/81, तो 16 यहां से ही देख लो, 16 का कितनी बार में आ रहा है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 4 और 81 आ रहा है 3 रेज टू द पावर 4, तो दोनों की कॉमन पावर क्या है? 4, तो आंसर इज 2/3 होल पावर 4। ऐसे ही सी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। -27 को किया तो ये 3 की पावर 3 है, -3 की पावर 3 और 343 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 दोनों को एक साथ लिखा, -3/7 होल पावर 3। डी पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। -1/243, 243 हमारा 3 की पावर 5 है और -1 की तो कितनी भी पावर करो 1 ही रहेगा, तो -1 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5, दैट इज -1/3 रेज टू द पावर 5। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल,
विच इज ग्रेटर? ए पार्ट 3 रेज टू द पावर 12 और 6 रेज टू द पावर 6, बी पार्ट -2/3 रेज टू द पावर 5 और -1/3 रेज टू द पावर 3। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए पार्ट क्या है? 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 करी, मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, 6 की पावर 6 की मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। तो किसकी पावर ज्यादा है? 3 की पावर 12 वाला नंबर बड़ा है, तो 3 रेज टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 6 रेज टू द पावर 6। नाउ बी पार्ट का सोल्यूशन, -2/3 की पावर 5, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आया -32/243। इसी तरह से -1/3 की पावर 3 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आया हमारा -9/243। अब देखो दोनों ही 243 है, बेस दोनों का 243 है, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है? एक -32 और एक -9, -9 बड़ा है -32 से, राइट, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो 9 बड़ा है, तो क्लियरली -9/243 इज ग्रेटर देन -32/243, दैट इज -1/3 रेज टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन -2/3 रेज टू द पावर 5। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, simplify the following. A part -1/2 raised to the power 2 multiply by 2 raised to the power 3 multiply by 3/4 raised to the power 3. B part -2/3 raised to the power 2 -1/6 raised to the power 3 bracket close multiply by 6/5 raised to the power 2। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। A part जितनी भी पावर से उतने टाइम सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -1/2 की पावर 2 है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3/4 की पावर 3 है तो उसको 3/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या किया? सारे न्यूमरेटर्स एक साथ मल्टीप्लाई किए, सारे डिनोमिनेटर्स। अब जितने कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दो, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, बस ठीक है। अब -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3, तो हमारा आ जाएगा 27 और नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो हमारा आया 27/32। तो इसी तरह से बी पार्ट देखते हैं। -2/3 रेज टू द पावर 2, तो -2/3 रेज टू द पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस है, 1/6 3 टाइम्स है, उसको ब्रैकेट में ही रखा, 6/5 2 टाइम्स है, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, माइनस यहाँ भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, सेम प्रोसेस यहाँ पे किया। तो ये आ गया 2 2 जा 4, माइनस माइनस है तो प्लस 4/9, 3 3 जा 9, माइनस 1/666 हमारा आ जाएगा 216, मल्टीप्लाई बाय 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 36/25, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 216 एलसीएम आया, 96 - 1 मल्टीप्लाई बाय 36/25, 96 - 1 इज 95/216 मल्टीप्लाई बाय 36/25। अब जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर लेंगे और कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 19/30। नाउ ट्राई दीज। Write the exponential form 4. First is 9 multiplied by 9 multiplied by 9 multiplied by 9 taking 3 as the base. अब हम देखेंगे 9 ऑलरेडी क्या होता है 3 multiplied by 3, तो कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स है 9, 3 multiplied by 3 है तो 4 2 जा 8, तो 3 raised to the power क्या होगा 8 होगा, राइट, बेस 3 हो जाएगा और पावर क्या रहेगी 8 रहेगी। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is reciprocal of numbers. If a upon b is a non-zero rational number, then its reciprocal is b upon a, and we write a upon b raised to the power -1 is equals to b upon a. Now a upon b raised to the power m is equals to a raised to the power m upon b raised to the power m. Reciprocal of a upon b raised to the power m is equals to b raised to the power m upon a raised to the power m, that is equals to b upon a raised to the power m. ये हमारा क्या है इसका रेसिप्रोकल
Hence, the reciprocal of a upon b raised to the power m is b upon a raised to the power m. Example से करते हैं इसको. Write the reciprocal of each of the following in exponential form. A part minus 5 raised to the power 9, B part 3 by 7 raised to the power 5, C part minus 2 upon 9 raised to the power 4. Solution देखते हैं. A part, reciprocal of minus 5 raised to the power 9 is equals to reciprocal of minus 5 by 1. इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं. माइनस 5 by 1 raised to the power 9 is equals to minus 1 upon 5. तो रेसिप्रोकल 5 upon 1 का क्या हो जाएगा? 1 upon 5 minus 1 upon 5 raised to the power 9. B part, reciprocal of 3 by 7 raised to the power 5 is equals to 7 by 3 raised to the power 5. C part, reciprocal of minus 2 by 9 raised to the power 4 is equals to minus 9 by 2 raised to the power 4. तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. If a and b are non-zero rational numbers and m and n are whole numbers, then we have first a raised to the power m multiply by a raised to the power n. बेस इक्वल है, दैट इज पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस a raised to the power m plus n. बेस इक्वल है, पावर्स अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी. सेकेंड, इफ m is greater than n, then a raised to the power m is divided by a raised to the power n is equals to, बेस इक्वल है लेकिन डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी. बड़ी में से छोटी माइनस हो जाएगी. a raised to the power m minus n. थर्ड, if m is less than n, then a raised to the power m divided by a raised to the power n is equals to 1 upon, अगर हमारी m छोटा है n बड़ा है तो हमारा क्या होगा? 1 upon a raised to the power n minus m. नेक्स्ट, a raised to the power m whole power n. अगर पावर की भी सुपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. a raised to the power m n. नेक्स्ट, a raised to the power n मल्टीप्लाई बाय b raised to the power n. बेस अलग हैं, पावर्स एक जैसी हैं तो बेस भी क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. a b raised to the power n. नेक्स्ट, सिक्स क्या है? a raised to the power n अपॉन b raised to the power n. बेस अलग हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो बेस हमारे डिवाइड होके पावर क्या हो जाएगी? a अपॉन b होल पावर n. नेक्स्ट, a raised to the power 0, किसी की भी पावर 0 है, वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. राइट, तो ये कुछ लॉज हैं. राइट, इन्हीं को हम यूज करके आगे सॉल्यूशन करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ए पार्ट 4 raised to the power 2 multiply by 4 raised to the power 5. B part minus 12 raised to the power 5 multiply by minus 12 raised to the power 5 multiply by minus 12 raised to the power 5. C part 2 by 5 raised to the power 5 multiply by 2 by 5 raised to the power 4. सॉल्यूशन देखते हैं. ए पार्ट 4 raised to the power 2 multiply by 4 raised to the power 5. बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड. तो 4 raised to the power 2 plus 5 that is 7. So 4 raised to the power 7. आंसर क्या रहेगा? 4 raised to the power 7. इसी तरह से बी पार्ट का सॉल्यूशन देखो. बेस क्या है? 12 और सबकी पावर क्या है? 5. बेस क्या है सबका? -12 और पावर क्या है? 5. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. तो -12 5 plus 5 plus 5. बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 3 टाइम्स है तो 5 plus 5 plus 5 that is equals to -12 raised to the power 50. इसी तरह से सी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं. 2 by 5, बेस इज 2 by 5, पावर इज 5, मल्टीप्लाई बाय 2 by 5 raised to the power 4. बेस इक्वल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. 5 plus 4 that is 9. तो आंसर इज 2 by 5 raised to the power 9.
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, simplify each expression. A part 3 raised to the power 4 is divided by 3 raised to the power 2. B part 2 upon 7 raised to the power 12 divided by 2 by 7 raised to the power 9. सॉल्यूशन देखते हैं. A part बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. तो 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2, बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 2, दैट इज 3 रेज टू द पावर 2. 3 रेज टू द पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9 इज द आंसर. इसी तरह से बी पार्ट करेंगे. 2 अपॉन 7 रेज टू द पावर 12 इज डिवाइडेड बाय 2 बाय 7 रेज टू द पावर 9. बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. तो 2 बाय 7 12 माइनस 9, 2 बाय 7 12 माइनस 9 कितना हुआ, 3. तो दोनों की पावर 3 अलग की, 2 की पावर 3 करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 को 3 टाइम्स करेंगे 343. तो आंसर इज 8 बाय 343. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, simplify and express the result in power notion. A part 4 raised to the power 2 super power 3. B part 1 upon 2 raised to the power 4 super power 2. C part minus 3 by 5 raised to the power 2 multiply by minus 3 by 5 raised to the power 4 and super power 3. Solution देखते हैं. A part 4 raised to the power 2 super power 3. तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. 2 multiply by 3, 4 raised to the power 2 multiply by 3 is equals to 6. So answer is 4 raised to the power 6. इसी तरह से B पार्ट का सॉल्यूशन देखो. 1 upon 2 raised to the power 4 सुपर पावर 2, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 1 upon 2 पावर 4 multiply by 2 is equals to 4 to the 8. तो 1 upon 2 raised to the power 8. C पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं. minus 3 by 5 raised to the power 2 multiply by minus 3 by 5 raised to the power 4. बेस इक्वल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स पहले क्या हो जाएंगी, 8 और उनकी सुपर पावर क्या है, 3. तो 2 + 4 इज 6 माइनस 3 by 5 रेज टू द पावर 6 एंड सुपर पावर क्या है, 3. तो 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ पावर, 6 3 जा 18. तो आंसर इज माइनस 3 by 5 रेज टू द पावर 18. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सपेंड. एक्सपेंड मीन्स उनको पावर में ना लिख के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना. A part 2 multiply by 4 raised to the power 5. B part minus 8a raised to the power 3. सॉल्यूशन देखते हैं. A part 2 multiply by 4 whole power 5. तो क्या करेंगे हम, 5 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 multiply by 4 multiply by 2 multiply by 4 2 multiply by 4 2 multiply by 4 2 multiply by 4. अब हमने 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, राइट. तो 2 की पावर कितनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर कितनी है, 5. तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट. नाउ बी पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं. माइनस 8a रेज टू द पावर 3. तो माइनस 8a को हमने 3 टाइम्स क्या किया, मल्टीप्लाई किया. माइनस 8 को अलग रखा और a को अलग रखा. माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय a को 3 टाइम्स, तो माइनस 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 3, right? Next example, simplify the following. A part 2 raised to the power 3 multiply by 3 raised to the power 5 multiply by 4 divided by 3 multiply by 32. B part 3 raised to the power 5 whole power 2 multiply by 5 raised to the power 3 upon 27 raised to the power 3 multiply by 5. C part 4 raised to the power 5 multiply by a raised to the power 8 b raised to the power 3 upon 4 raised to the power 2 multiply by a raised to the power 5 and b raised to the power 2. सॉल्यूशन देखते हैं. A पार्ट हमने एज इट इज लिख लिया. 2 raised to the power 3 multiply by 3 raised to the power 5 multiply by 4 upon 3 multiply by 32. दैट इज इक्वल्स टू, अब हमारे जो पावर में नहीं है हम उनको भी पावर नोशन में रखेंगे. जैसे हमारा यहाँ पे 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 raised to the power 2. तो पहले वाला एज इट इज रखा, 2 raised to the power 3 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को लिख दिया 2 raised to the power 2. ऐसे ही नीचे 3 की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होती तो पावर 1 होती है. 32 को हमने एक्सपेंड किया तो हमारा आया 2 raised to the power 5. पावर नोशन में इसको लिख दिया. अब देखो सारी जितने भी पावर्स हैं
वो सारी हमारे सबके बेस या तो 2 है या 3 है, तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ डिवाइड हो रहे हैं। तो सेम बेस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड कर दो, सेम बेस में अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को माइनस कर दो। तो पहले 2 की पावर देखते हैं, यहाँ पे भी 2 की पावर, यहाँ पे भी, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को हमने ऐड कर दिया 3 + 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 5 एज इट इज। अब यहाँ पे 2 raised to the power 5, 3 raised to the power 5 अपॉन 3 raised to the power 1 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 5। अब क्या हो रहे हैं, डिवाइड, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो यहाँ पे भी 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 5 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है, 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 5 अपॉन 3 raised to the power 1। तो हमने क्या किया, सेम बेस को एक साथ कर लिया, यहाँ पे 2 raised to the power, सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स माइनस, 5 - 5 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 5 - 1। 5 - 5 क्या रहा, 2 raised to the power 0 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 5 - 1 इज 4। दैट इज इक्वल्स टू, किसी की भी पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा आंसर आएगा 81। 81 1 जा 81, ये हमारा क्या रहा आंसर। नाउ बी पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं सेम इसी तरीके से। पहला क्या है, सुपर पावर है, 5 2 जा 10, राइट, 5 raised to the power 3, 27 raised to the power 3 है, लेकिन 27 ऑलरेडी 3 की पावर में आता है, तो 3 की पावर 3 होल पावर 3 और 5 की पावर कुछ नहीं है तो पावर 1। अब देखो सारी जो हमारे बेस है वो या तो 3 है या 5 है, तो जो सेम बेस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को ऐड कर दो, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को माइनस कर दो। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 3 raised to the power 10 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 3 अपॉन 3 raised to the power 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 1। अब 3 के बेस में 3 और 5 के बेस में 5, 3 raised to the power 10 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 9 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 3 अपॉन 5 raised to the power 1। अब बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएगी। 3 raised to the power 10 - 9 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 3 - 1 इज इक्वल्स टू 10 में से 9 - 1 तो 3 और 5 raised to the power 3 - 1 इज 2, तो 3 एज इट इज, 5 5 जा 25, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 75 इज द आंसर। नाउ सी पार्ट का सॉल्यूशन, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। देखो पावर 4 में है, ए में है, बी में है, तो 4 को एक साथ, ए को एक साथ, बी को एक साथ, तो यहाँ पे 4 के नीचे 4 की पावर, ए के नीचे ए की पावर, बी के नीचे बी की पावर, डिवाइड हो रहे हैं, सबकी पावर्स माइनस हो जाएगी। तो 4 की पावर 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 8 - 5, बी की पावर 3 - 2, 4 की पावर 3, ए की पावर 3, बी की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 64, a raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय b, आंसर इज 64a³ b। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, if a upon b is equals to 1 upon 3 raised to the power 2 is divided by 4 upon 9 raised to the power 0, then find the value of b upon a raised to the power 3। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें क्या गिवन है, a upon b is equals to 1 upon 3 raised to the power 2 divided by 4/9 raised to the power 0। जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो a upon b 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, पावर्स अलग अलग कर ली, डिवाइडेड बाय 1, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1। दैट इज इक्वल्स टू 1 upon 9 इज डिवाइडेड बाय 1। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम। तो हमारा a upon b आ गया 1 upon 9। ठीक है, हमें क्या निकालना है, b अपॉन a। b अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन 9 का रेसिप्रोकल, a अपॉन b, b अपॉन a का। ठीक है, तो 9 दैट इज इक्वल्स टू 9 और b अपॉन a की पावर 3, पावर 3 है तो b अपॉन a की वैल्यू कितनी आई है 9, 9 रेज़ टू द पावर 3 करेंगे, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 729। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n if क्या गिवन है, 5 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 11 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 8n। सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
सबके बेस इक्वल हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 5/3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 रेज टू द पावर 11 इज इक्वल्स टू 5/3 रेज टू द पावर 8n। क्या है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 5/3 5 प्लस 11 कर दिया और अब इज इक्वल्स टू 5/3 रेज टू द पावर 8n। 5/3 5 प्लस 11 इज 16 और 5/3 रेज टू द पावर 8n। बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। इफ बेसिस आर सेम पावर शुड बी इक्वल। तो हमारा 16 इज इक्वल्स टू 8n। n की वैल्यू निकालेंगे तो 8 अपोजिट साइड आके डिवाइड में चला गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। नाउ ट्राई दीज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट 4 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 0 प्लस 6 रेज टू द पावर 0। सबकी वैल्यू, जिसकी भी पावर 0 है सबकी वैल्यू 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो आंसर कितना रहेगा, 2। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is scientific notion or standard form of large numbers. Any number that can be expressed as a product of a number between 1 and 10 and a power of 10 is said to be in its standard form. In general, a number in the form of a multiplied by 10 raised to the power n, where a lies between 1 and 10, that means equals or greater than 1 or less than 10, and n is an integer, is said to be in standard form. For example, mass of the earth is equals to 59760000 up to kg, that is equals to 5 point। अब जितनी भी जीरोज है, 5 पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको 10 की पावर में लिख लेते हैं। उनको किसकी पावर में, 5.976 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद नंबर ऑफ जीरोज दैट इज 5.976। अब जितनी जीरोज हैं और 5 के बाद हमने डेसिमल लगाया तो 3 डिजिट्स हमारी ये वाली 976 वाली, तो टोटल ये जीरोज और 976 वाली टोटल हमारे 24 डिजिट्स हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5.976 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 24 kg. Mass of the sun is equals to 2,000,000 up to kg. तो इसको भी हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और अप टू जितनी भी जीरोज हैं kg, दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 30, दैट मीन्स 30 जीरोज हैं, 10 raised to the power 30 kg। इस तरह से ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एग्जाम्पल से करते हैं इसको। Express the following numbers in standard form. A part 6759800000. B part 7530000000. C part 381.975. D part 340000000000. सॉल्यूशन देखते हैं इसका। A part 6.7598, हमने 6 के बाद, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 1 और 10 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ 6.7598 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी नंबर ऑफ जीरोज हैं यहाँ पे, तो टोटल हमारा कितना हो गया, क्योंकि ये डेसिमल हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 डिजिट क्या किया है, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो 9 जीरोज लगाएंगे। कितनी जीरोज लगाएंगे, 9 जीरोज। तो हमारा आ जाएगा 6.7598 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9। इसी तरह से बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में हमारे कितने डिजिट्स हैं टोटल, देखो 7 पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी कितनी है 9 डिजिट है। 7.53 ये टोटल हमारी जीरोस को लगा के 9 डिजिट है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे 7.53 मल्टीप्लाई बाय कितनी जीरोस है यहाँ पे 9 जीरोस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 7.53 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9। इसी तरह से सी पार्ट में करेंगे।
सी पार्ट में देखो डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है हमें, 3 के बाद, तो 3.81975, 975 तो ऑलरेडी डेसिमल के बाद है, हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया है, किधर किधर किया है, लेफ्ट साइड में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखेंगे तो लिखेंगे 3.81975 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। इसी तरह से डी पार्ट में देखो टोटल कितनी डिजिट्स हैं, टोटल हमारी 12 डिजिट हैं, हमें 3 के बाद डेसिमल पुट करना है, तो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 11 जीरोस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड में दे रखे हैं, इनको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। ए पार्ट है 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, बी पार्ट है 5.838 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट कितनी है, 10 की पावर 3, दैट मीन्स कितनी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, 3 जीरो से, तो 1000, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज इक्वल्स टू कितना, 4300, क्योंकि डेसिमल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल के बाद जीरो हट जाएगी। इसी तरह से बी पार्ट का सॉल्यूशन देखो, 5.838 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, दैट मीन्स कितनी जीरोज हैं, 6 जीरोज हैं, तो 6 जीरोज के लिए 3 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, जो आगे शिफ्ट होगा, और 3 जीरोज हमारी रह जाएंगी, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5838000। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन खुद कीजिए।